A very fine good morning to everyone. I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we are here with a new topic, that is types of interior lighting. So guys, this particular questions come in your PGT, TGT as well as your ASRB. अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चरल का नेट का, उसमें ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आया था. सो होप कर सकते हैं दैट फॉर पर्टिकुलर UGC नेट ऑल्सो वी गॉट वन ऑफ द क्वेश्चंस from this topic. So there are mainly 5 types of interior lighting named as general, ambient, mood, task and accent. So these are 5 types of interior lighting. So this particular topic is from our interiors, from housing, and घर के अंदर जो lights use होती हैं किस तरह की होती हैं उसके लिए उसके regarding ये topic है. So let's have a look on one by one. So general light, as per the name, it is the basic foundation of lighting scheme providing a uniform glow. So uniform glow मतलब all over the room ये एक जैसा सा look present करता है, provide करता है over an entire room and illuminating a space functionally rather than for aesthetic reason. So aesthetic means beauty. ये ब्यूटी ना दे के ब्यूटी पे एम्फसाइज नहीं करता, ये फंक्शनल पर्पज़ के लिए होता है कि ये हर जगह हमारे पूरे रूम में प्रॉपर हर कोने में लाइट प्रोवाइड कर दे. The defining characteristics of general lighting is that it usually direct and should be controlled by a dimmer switch to account for change in daylight. So that particular means if there is night, so we can turn on the switch and अगर यहाँ पर day है तो हम उसको dim कर सकते हैं. So इस तरह का हमारा general lighting में आता है जो complete entire room के लिए रहता है. नेक्स्ट इज एम्बियंट लाइटनिंग. एम्बियंट लाइटनिंग इस तरह की लाइटनिंग होती है. सो हियर वी कैन सी द नेक्स्ट लेयर ऑफ लाइटनिंग इज एम्बियंट लाइटनिंग, मतलब जो जर्नल के बाद आती है दैट इज आर एम्बियंट लाइटनिंग एंड इट इज़ अ ग्रेटर पार्ट ऑफ जर्नल लाइटनिंग. Both types share common important characters. They primarily functions and use a light to complete area. इसका भी means ambient lighting is also basically for our कवरेज देता है. और मेन डिफरेंस क्या होता है, 2 इज़ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, दोनों की डायरेक्शन पे रहता है. अब आपने देखा था इन दिस पर्टिकुलर ये एंटायर रूम को ग्लो कर रहा है, बट फॉर दिस ये एंटायर को नहीं बट पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो इट इज़ जर्नली यूज फॉर एंटरटेनिंग, इट क्रिएट ड्रामा. सो गाइज जो अभी मैंने आपको बताया है ASRB के लिए आपका एग्जाम है, एग्रीकल्चरल के लिए है, वहाँ पर क्वेश्चन था दैट विच लाइट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट ड्रामा इन द रूम. सो ये क्वेश्चन था आपका, विच लाइट क्रिएट्स ड्रामा इन द रूम. सो इस तरह के क्वेश्चन में आपका एम्बियंट लाइटनिंग ऑप्शन था, तो वहाँ पर आप उसको कर सकते हैं. सो इट इज़ इनडायरेक्ट एंड therefore softer than journal light because it doesn't usually use down lighting and it doesn't create unflattering shadows. So यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की हमारी क्या रहेगी, ambient lightning रहेगी. Next is task light. Everyone knows about this particular light. As its name would suggest, task lighting is any light source used for a particular task like recording, reading और cooking. So particular read करने के लिए जैसे हम बोलते हैं लैम्प्स हम यूज़ करते हैं, सो उस तरह की ये लाइटनिंग होती है. here you can see by nature these lights need to have a strong wattage than मोस्ट अदर लाइट्स. इनका जो वॉट होता है, वॉट सिस्टम होता है लाइट्स का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिव टू अदर. ऑलवेज कंबाइन विद एडिक्वेट एम्बियंट लाइट, और ये एम्बियंट लाइट के साथ कंबाइन होता है. हाउएवर टू अवॉइड आई में स्ट्रेन करना, शार्प कंट्रास्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क एरियाज, इन सब चीज़ों के लिए जो ट्रांजिशन होता है लाइट्स का डार्क और लाइट का, उसको ये कंट्रोल करता है. Next is mood lighting. As per the name, it is an overall look of a room rather than journal or ambient lighting. ये ना ही तो general होता है हमारा, ना ही ये ambient होता है, ये mood के ऊपर depend करता है. And a space would be bare without it. So complete नहीं होता हमारा जो space है इसके बिना. It make a room pleasantly inviting by creating pools of light which counteract the shadow caused by journal lighting. सो जो हमारी
जर्नल लाइटनिंग से शेडोज आती हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम मूड लाइटनिंग को यूज़ करते हैं. So next is ascent lightning. It is similar to task lightning. Ascent lightning has a particular function and is any lightning which has specifically been included to highlight a particular feature in a room. So एक particular feature को highlight करने के लिए इसको use किया जाता है, इस particular feature को. सो स्पॉटलाइट विच हाईलाइट आर्ट वर्क, जैसे स्पॉटलाइट आर्ट वर्क को करती है, स्कल्पचर्स को करती है, ऑब्जेक्ट्स को करती है इन कैबिनेट्स और पेडेस्ट्रल्स, जो सीढ़ियों के नीचे का एरिया होता है. और एग्जाम्पल ऑफ वो एसेंट लाइटनिंग के एग्जाम्पल है विच एनहांस द पीस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग लॉस्ट इन एन अंडर इल्यूमिनेटेड स्पेस. सो अगर कहीं पर रोशनी कम है, वहाँ पर रोशनी देनी है, तब हम एसेंट लाइटनिंग को यूज़ करते हैं. सो गाइज होपफुली आपको ये 5 के 5 टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एज आपको क्वेश्चंस भी पता चल गए होंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस UGC और NTA आस्क फ्रॉम अस. So if you find the video suitable for you as well as your friends, so please share the content, like, comment and do subscribe to KMS Fashion. Till then, take care, have a nice time, keep learning, bye bye.